Hello friends and welcome back to my YouTube channel. So in the last videos we have discussed about the EVS paper. EVS paper we have completed with CTET Gen 2021 paper. In this video we are going to discuss about the paper 2 that is and related to science and mathematics topic. So this paper I have downloaded from CBSE website. You can also download it from CBSE website. It is of CTET Gen 2021 year. So let us discuss with the questions which we have given in the CTET Jan 2021 paper. So what I have done that this is the screenshot of the paper that we are going to solve. So now it is going to be CBT based. So this is last year papers. So paper will be in English and Hindi medium if you select the language. So the first question is which of the following represents correct matching set? Option A is helps in the involvement of body, and option B is hard structure which forms this skeleton. Option C is part of skeleton which can be bent. Option D joins the chest bone and backbone together to form an enclosure. And in second column the options are cartilage, muscles, rib cage, bone. So what we have to do in this question that we have to match the organ with their functions. Okay, so it's basically based on our basic knowledge of biology or organ system. And in Hindi also the question is given, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है? सिकुड़कर और स्थिर होकर शरीर की गति में सहायता करती है, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। और इसमें जो सेकंड कॉलम में ऑप्शन दिए हुए हैं उपास्थि, पेशी, पसली पिंजर एंड अस्थि. So the correct answer of this question is second one, that is option A, helps in the movement of body by contraction and relaxation will go with the muscles. So आपको पता है कि contraction and relaxation जो है वो muscles की property है और जो movement में हमें help करती है. Then B जो है उसका है fourth one, hard structure which forms the skeleton. Definitely bones form the skeleton which protects our vital organs and give a framework to the body, right? So C जो है उसका है first one, part of skeleton which can be bent, that is cartilage. You know that cartilage bone is present in our ears which can be bent easily, present in our nose which can be bent easily. Now option D joins the chest bone and backbone together to form an enclosure, that will go with the rib cage, that is third one. So it's an also rib cage is a bone of structure which protect the vital organ, that is lung. Okay, so the correct answer of this question is second one. And you can easily answer this question if you have been cleared with the basics of all the organ system. Okay, now the 62 question is which of the following glands in human beings secretes more than 2 hormones? निम्नलिखित में से मानव की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? And option है adrenal, second pituitary, pancreas and thyroid. So the correct answer is direct, that is pituitary. So जो पीयूष ग्रंथि है या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मोर देन 2 हार्मोन सिक्रेट करता है. एड्रिनल जो है वो है सिक्रेट करता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो फाइट एंड फ्लाइट के दौरान जैसे हमें डर लगता है या हम कुछ एंगर में रहते हैं, रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, तब वो सिक्रेट करता है. पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन, ग्लूकागोन सिक्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ अल्फा बीटा सेल्स, राइट. थायराइड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है और बहुत सारे फंक्शन करता है. पिट्यूटरी जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, मोर देन 2. सो इट इज पिट्यूटरी. द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63, which of the following statement is true? All metals are solids, all metals are hards, all non-metals are gases, all non-metals are non-ductile. सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, सभी अधातुएं गैस होती हैं, सभी अधातुएं अतन्य तन्य नहीं होती. नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सो आप एक देख लीजिए कि इसमें जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ट्रू. Which of the following statement is true? Okay, so आपको ये जो चीज है इस पे ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में. सो एक बार 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया करें जब आप सीटेट में एग्जाम दे रहे हो ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स. इज दैट करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट. ऑल मेटल्स आर नॉट सॉलिड्स. आपको पता होगा कि मर्क्यूरी जो है जिसका फॉर्मूला Hg है वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे.
ऑल मेटल्स आर हार्ड, नहीं ये भी सही नहीं है। सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं जो नाइफ से कट हो सकते हैं, ये आपने बेसिक्स साइंस में पढ़ा होगा। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, this is also not correct, and all non metals are non ductile, this one is correct। डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है, तन्य जिससे कहते हैं कि वायर के रूप में खींचा जा सकता है, ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, ये मेटल्स की है, इसीलिए वायर्स जो हैं मेटल के बनते हैं, जैसे कॉपर एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं, राइट, आयरन्स के वायर बनते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, सभी अधातुएं अतन्य होती हैं। Okay, now the next question is why is a man-made fiber obtained from a natural source? What could be why? Why कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, why क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके हैं रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक, जूट। सो द करेक्ट आंसर इज रेयन। रेयन जो है वो एक मैन मेड फाइबर है, बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ओके, विच इज obtained from a natural source. So the correct answer is rayon. Now 65th question is study 65th question is study the following table. So एक टेबल दिया गया हुआ है जिसमें आपको कॉलम्स बनाए गए हैं, फ्यूल, कैलोरी वैल्यू, स्टेट, इग्निशन टेम्परेचर, ओके, और उसमें जो है पूछा गया है विच इज बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल, इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है, ओके। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन, दैट इज सी। जो है सी जो फ्यूल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और मॉडरेट होना चाहिए उसका इग्निशन, ज्वलन ताप, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 65th वन इज C1। नाउ 66th question is species restricted to a particular area are referred to as endangered species, extinct species, endemic species, migratory species। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है संकटापन्न स्पीशीज, विलुप्त स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, प्रवासी स्पीशीज। सो ये आपको नाम से ही इसका आंसर आ जाना चाहिए, और ये बहुत ही बेसिक है, आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा अपने टेक्स्ट बुक में। सो इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होते हैं जिसमें जिनको खतरा है, अभी उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस कम हो रही है ड्यू टू नॉन और अननोन रीजंस, ओके। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर्स हो गए, ये सब जो है खत्म हो चुके हैं। माइग्रेटरी स्पीशीज जो है वो प्रवासी हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं। और इंडेमिक स्पीशीज जिसका नाम होता है हिंदी में विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, वो इसका करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 66 क्वेश्चन इज थर्ड वन, दैट इज एंडेमिक स्पीशीज, ओके। Now sir, another question is metal X displaces metal Y from its salt solution but is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal. धातु X जो है धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है X, Y, Z cannot be determined. So the correct answer of this question is third one, that is Z. So Z metal जो है वो ज्यादा reactive है, okay. Now in this question, for this question, इस question के लिए आपको you have to go through displacement reaction हो गया, substitution reaction हो गया, जो chemistry में basic है उसको आपको अच्छे से तरीके से तैयार कर लेना है। Now the 68th question is light rays from an object fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about the nature of image of the object? किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विशिष्ट ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? फर्स्ट वन इज इट विल बी वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज, यह आभासी और सामान्य साइज का होगा। सेकेंड इज इट विल बी रियल एंड इनलार्ज, यह वास्तविक और आवर्धित होगा। ऑप्शन थर्ड इज इट विल बी वर्चुअल एंड इनलार्ज, यह आभासी और आवर्धित होगा। या फोर्थ वन इज नो इमेज विल बी फोर्ड, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपकी बेसिक फिजिक्स से पूछा गया है। आपकी फिजिक्स की नॉलेज कितनी है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज पे, और इस पे पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। अगर आपका इसका क्लियर है बेसिक तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। जो करेक्ट आंसर है वो है नो इमेज विल बी फॉर्म।
68 का आंसर जो है वो फोर्थ वन है, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। Now another question is, in order to slide a huge box lying on the ground in her room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following forces? Option 1 is static friction, option 2 is gravitational force, option 3 is normal force and option 4 is muscular force। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगना चाहिए? स्थैतिक घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिलंब बल, पेशीय बल। ठीक है, तो इसमें से कौन से बल से, यानी जो बॉक्स रखा हुआ है उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई काम कर रहा है जिससे आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको इधर से उधर सरकाने के लिए, हिलाने के लिए। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है इसका, वो डायरेक्ट आंसर है, वो बहुत इजी है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई भी चीज अगर रखी होती है मतलब अपना वो कहीं रख दी गई है तो उसपे जो फ्रिक्शन होता है, जो फर्श और मतलब जो फ्लोर और उस पर्टिकुलर थिंग के बीच में रहता है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रेशमा को ताकि वो दैट शी विल बी एबल टू मूव दैट बॉक्स। ओके, नाउ द 70th क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, हायर इज द पिच। The loudness of sound is determined by the frequency of vibration. Sound cannot travel through vacuum. Pitch of sound is determined by its amplitude. कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए इस जो क्वेश्चन में है, from this question the option are little bit confusing, but if you are aware with the facts of physics or something like that, so you can easily answer this question. The correct answer is sound cannot travel through vacuum. Sound needs a medium to travel. Okay, ध्वनि को है जो है वो मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, so it cannot travel through vacuum. So the correct answer is, correct statement from them among the following is, sound cannot travel through vacuum. ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। Now 71th question is, which of the following sets comprises liquids which are poor conductors of electricity? See the question, poor conductors। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? टैप वाटर, शैम्पू, हनी। सेकेंड वन इज सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर। थर्ड वन इज शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर। फोर्थ वन इज शुगर सोल्यूशन, विनेगर, लेमन जूस। So the correct answer of this question is third one, shampoo, vegetable oil and distilled water. Okay, शैम्पू, वेजिटेबल और डिस्टिल्ड वाटर जो है ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल्स नहीं होते, इसीलिए इसमें कंडक्शन नहीं होता। टैप वाटर में होता है, सॉल्ट सोल्यूशन में भी हो सकता है, शुगर सोल्यूशन जिसमें अगर वाटर है तो हो सकता है। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है 71 का है वो थर्ड वन, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर। सो लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्रोमाइजेस केमिकल चेंजेस? कौन सा नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकंड वन इज डिसॉल्विंग इन सॉल्ट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, श्रेडिंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, तो इसमें से आपको क्या करना है कि वो सेट को पहचानना है जिसमें सिर्फ केमिकल चेंजेस दिखे। अब देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो फिजिकल चेंज है। वाटर जो है फ्रॉम लिक्विड स्टेट इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैसियस स्टेट ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर, सो इट्स अ फिजिकल चेंज। ओके, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, श्रेडिंग ऑफ पेपर। सो इसमें जो करेक्ट आंसर वो है इसका 72 का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर एंड डाइजेशन ऑफ फूड। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, आयरन जो रस्ट होता है वो पानी और हवा की वजह से होता है। बर्निंग ऑफ पेपर भी है, वो भी केमिकल चेंज है। और डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारे पेट में डाइजेशन होता है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन से होता है, सो इट्स अ केमिकल चेंज। ओके, सो अगर आपने पहले कभी चैप्टर में अपने नीचेतर क्लासेस में पढ़ा होगा, उसमें लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो उनके एग्जांपल पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, सो आपको उनके एग्जांपल्स भी अच्छे से देखना पड़ेगा ताकि आप सीटेट क्वालिफाई कर सके। सो वी हैव कंप्लीटेड विद ऑलमोस्ट
12th क्वेश्चन ऑफ आवर जनरल साइंस सीटेट जनवरी 2021 का जो पेपर है पेपर 2, उसका हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर क्वेश्चन वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर वो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी जल्द होने वाला है उनकी भी हेल्प हो इसमें सीटेट में। ओके, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट कीजिए और बताइए अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो। ओके, सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से अनदर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पेपर आल्सो। So thank you so much for watching this video. We will meet very soon. Thank you.